Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of our Lord and Savior Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम रोमियो चैप्टर 8 वर्स 9 till 17 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर की पवित्र आत्मा द्वारा पवित्रकरण इसकी हेडिंग है। The word of God today we are going to meditate on, that is chapter 8 verse 9 till 17, and the heading in English is life in the spirit. आइए हम परमेश्वर का कलाम पढ़ने से पहले प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद 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 यावा राफा यावा यरम यावा शलोम यावा यरी यावा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड, वी आर सो थैंकफुल टू यू फॉर योर अनकंडीशनल mercy and blessing. Make me able to read and speak the word of God and record through this video and deliver the word of God to others as well. Whomsoever, whensoever, wheresoever will listen the word of God in any faith, Father Lord, may that person be super blessed in the name of Jesus Christ with the presence of Holy Spirit. In Jesus' precious name, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, I ask this prayer. Amen and amen. I'll read in Hindi. Romans chapter 8, Romeo chapter 8, verse 9 till 17. और we start from 8 chapter verse 8. जो लोग शरीर की वासनाओं से संचलित हैं उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा की संचलित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं। यदि मसीह आप में निवास करते हैं तो आपके फल स्वरूप शरीर भले ही मर जाए किंतु पाप मुक्ति के फल स्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा पाप लोगों में निवास करता है, उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है आपको नाशवान शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। इसलिए भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं। हम उनके अधीन रहकर जीवन नहीं बिताएं। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा में प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचलित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसके विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर के विरासत के भागी हैं। यदि हम उनके साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। महिमान्वित होंगे। ये परमेश्वर का कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत हम सब भाइयों बहनों पर, बड़ों बुजुर्गों पर बनी रहे। आमीन। I'll read in English.
Romans chapter 8 verse 8 till 17. Those who obey their human nature cannot please God, but you do not live as your human nature tell you to. Instead, you live as the Spirit tells you to, if in fact God's Spirit lives in you. Whoever does not have the Spirit of Christ does not belong to him. But if Christ lives in you, the Spirit of life for you, because you have been put right with God, even though your body are going to die because of sin, if the Spirit of God who raised Jesus from death live in you, then he who raised Christ from death will also give life to your mortal bodies by the presence of his Spirit in you. So then, my brother, we have an obligation, but it is not to live as our human nature wants us to live. For if you live according to your human nature, you are going to die. But if by the Spirit you put to death your sinful action, you will live. Those who are led by God's Spirit are God's Son. For the Spirit that God has given you does not make you slave and cause you to be afraid. Instead, the Spirit makes you God's children, and by the Spirit's power, we carry out the God's Father. We cry out to God, Father, my Father. God's Spirit joins himself to our spirit to declare that we are God's children, since we are his children. When we'll possess the blessing he keeps for his people, and we will also possess with Christ what God has kept for him. For if we share Christ's suffering, we will also share his glory. This is the word of God. Praise be to God. Amen. जो वचन आज हमने पढ़ा, इसमें परमेश्वर ने बहुत खूबसूरती से अपने पाक कलाम में ये बताया that if we live by the Spirit, the God's Spirit, we need to behave accordingly. We need to be pure. We need to have good thinking for others. We need to have good intention for others. Especially boys need to have the good intention for the girls, and girls need to have good intention for the boys. And apart from that, we need to have good intention about our brothers and sisters. We need to have good intention about our father, mother, brother, sister, every relationship we have in this worldly life. And we need to do good because we are God's son. Those who led by the God's Spirit are God's son. परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र कहा. जब हम परमेश्वर के दिए हुए हुक्मों और आत्मा के द्वारा जिएंगे तो हम बेशक परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे. और यहाँ पे परमेश्वर ने अंतिम में बहुत खूबसूरती से इस पाठ को क्लोज किया 16वीं और 17वीं आयत में. गॉड स्पिरिट जॉइंस हिमसेल्फ टू आवर स्पिरिट. परमेश्वर का आत्मा हमें परमेश्वर से मेल कराता है. टू डिक्लेयर दैट वी आर गॉड्स चिल्ड्रन. ये बताता है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं. सिंस वी आर हिज चिल्ड्रन वी विल पोजेस द ब्लेसिंग ही केप्ट फॉर हिज चिल्ड्रन. हम उस बरकत के अधिकारी हैं जो परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए रखी है, जो वायदे प्रभु यीशु मसीह नासरी ने स्वर्ग में जाने से पहले हमसे किए. हम उस ब्लेसिंग्स के अधिकारी हैं. And we will also possess with Christ what God has kept for him. जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह नासरी से कहा और प्रभु यीशु मसीह नासरी ने हमें कहा, वो सब प्रभु हमें देंगे. यहाँ लिखा है, हम मसीह के साथ ईश्वर के विरासत के भागी हैं यदि हम उसके साथ दुख भोगते हैं. कहा गया जो कल था या
बहुत सी जगह आपने पढ़ा कि जो क्रॉस है वो दुख और इटर्नल लाइफ का एक चिन्ह है। परमेश्वर ने दुख भोगा, पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर लिया और क्रूस पे अपने प्राण दे दिए हमें बचाने के लिए और एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि जब क़यामत का दिन आएगा, कब्रें खोल दी जाएंगी, मुर्दे जला दिए जाएंगे और उस समय न्याय किया जाएगा। और जिस तरह प्रभु यीशु मसीह नासरी अपने पिता के घर बैठे हैं, हम भी प्रभु यीशु मसीह नासरी के वायदे के अनुसार यहोवा परमेश्वर ने जो हुक्म उन्हें दिया, जो वायदा हमें करने के लिए कहा, उस वायदे के अनुसार यहाँ पे लिखा गया, यदि हम उसके साथ दुख भोगते हैं तो हम उसके साथ महिमान्वित होंगे। यहाँ लिखा गया, For if we share Christ's suffering, we will also share His glory. तो हम परमेश्वर के पुत्र हैं, बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है और हम परमेश्वर के पाक पवित्र नाम की जय जयकार करते हैं और परमेश्वर के दिए हुए वायदे और प्रॉमिसेस के अनुसार हम परमेश्वर के घर, परमेश्वर पिता के घर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में क़यामत दिन के बाद अपने इस नाशवान शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा में जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो इस शरीर में बोल रहा है और सब बहन भाइयों के शरीर में बोलता है, वो हमारे जब क़यामत के दिन न्याय होगा, उस न्याय के अनुसार हम परमेश्वर के घर में निवास करेंगे। और हम अभी से परमेश्वर के घर के वारिस हैं, लेकिन उस घर तक पहुंचने के लिए ज़रूरत है हमें एक दूसरे से प्यार रखने की, मेल मिलाप रखने की और एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने की। यह आज परमेश्वर का कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत हम सब पर, आप सब पर बनी रहे। आमीन एंड आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद करते मेरे यहोवा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी, प्रभु पवित्र आत्मा, माँ मदर मैरी, फॉर योर अनकंडीशनल मर्सी एंड ब्लेसिंग। सच में प्रभु जी, आपने हमसे बेशकीमती प्यार किया और हर जगह अपने पवित्र कलाम में आप कहते हैं कि जब हम आपकी आत्मा में जीते हैं, हम आपके पुत्र कहलाए जाएंगे। और सच में प्रभु जी, हम आपके पुत्र हैं, बेटे बेटियां हैं और उसी अधिकार से हम संपूर्ण विश्वास से आप ही के पवित्र नाम की जय जयकार करते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं। इस योग्य कर प्रभु जी कि आप ही के दिए हुए हुक्मों पे चलें और बहुतायत से बरकतें बारिश हों। इन जीसस प्रेशियस नेम वी गिव यू थैंक्स एंड प्रेज ऑलवेज एंड फॉरएवरमोर। आमीन एंड आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी और रोज़ हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेके हमेशा तक आप ही का है। इन जीसस प्रेशियस नेम वी गिव यू थैंक्स एंड प्रेज ऑलवेज एंड फॉरएवरमोर। आमीन एंड आमीन। O my Lord Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In Jesus' precious name we ask this prayer. Amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with thee. Blessed is the fruit of the womb, Lord Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me, my wife, my brother, our kids and our family member and our coming generation, now and forevermore. Amen and amen. God bless us all in the name of the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, love of Mother Mary. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Praise be to God. Happy weekend. Amen.